Okay. Very good morning to all of you guys. Good morning, Uh, sir. Good morning. Last time in the last lecture, we had completed the introduction part of engineering drawing and then drawing instruments and accessories that used in making all of the kind of drawing in engineering drawing, and that we move ahead with the rule of BIS, Bureau of Indian Standards, special rule for engineering drawing, SP 46, right? We had completed that three topics. Now to start type of lines and its application. Today we will see the types of line and its application and dimensioning methods, right? So let me start. First of all, I'll join the audio of device. Okay, so types of line and its applications, right? In the engineering drawing, there are normally 7 or 8 types of common lines that are used in engineering drawing to make any kind of drawing. Their types are shown in your screen. First type of line is part outlines, heavy dark line that used to make a drawing outside of borders and all. Then light outlines that are used to make inside of lines like section lines. Then hidden lines, after that center lines, after that dimension lines and extension lines, after that cutting plane lines and breaking lines, right? These are the common types of lines that are used in engineering drawing to make any kind of drawing, right? So one by one we will see the all the types of line and its uses, right? So let's start. I have one video to show that explain all the types of line and its uses. Okay, first of all we will see. Next, we will see lines and types of lines. Just as in any textbook, we are taught to use the correct words for making correct sentences. Similarly, in engineering drawing, the details of various objects are drawn by different types of lines. Various types of lines are used in engineering drawing. I hope sound is clear to all of you. Yes, sir. Okay, I'll continue now. Sir. Yes. Okay. Now let us see the different types of lines. First is a continuous thick line. This line is used to display outline and edges of the main drawing. Next is the continuous thin line. This line is basically used for dimension, extension, projection, leaders, hatching, etc. Next is a continuous thin freehand line. This line is used to show short break or irregular boundaries. Next is the continuous thin line with zigzags. This line is used to show long break. Next is the dashed line. This line is used to show hidden edges of the main object. Next, thin line, long dash dotted. This line is used to represent the center line for circles and arcs. Next is the chain thin line with thick at the ends. This line is used to represent the location of a cutting plane. Okay. These are the types of lines that used to make a drawings. Next we will see line. These are the main types. First is continuous thick. In the illustration type, there example drawing is given, and after that applications. Continuous thick line is used for visible outlines of the drawing. Yes, first of all, you can all. હેલો સર हाँ बोलो बोलो. એ એફ આ એફ આવશે સમજાણું નહીં.
ओके, I'll give सबको मैं अच्छे से समझाऊंगा वन बाय वन लाइन, नो प्रॉब्लम. Okay, for you can type these lines and its applications in your books. मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग एक प्लेन बुक जिसमें लाइंस ना हो ड्राइंग के लिए, ड्राइंग बुक्स लेके रख सकते हो अपने पास, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके होम पे अवेलेबल है आपके पास, उसकी हेल्प से आप सबको ये सब कुछ लिखना है. आपको एक बुक टाइप बनाना है, जो आप नोट्स बनाने हैं जो आपको ही एग्जाम के टाइम पे हेल्प करेंगे, राइट. तो ये टाइप्स ऑफ लाइंस एंड इस एप्लीकेशन आपको लिखना है. फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन इज कंटिन्यूअस थिक लाइन. उसका एप्लीकेशन क्या है एग्जैक्टली, वो विजिबल आउटलाइंस जो है उसको ड्रॉ करने के लिए उस लाइन का यूज किया जाता है, राइट. जो भी ड्राइंग की आउटलाइंस रहती है. उसके बाद जो कंटिन्यूअस थिन लाइन आती है, उसका बहुत सारे यूजेस में उसका यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन लाइन है, उसके बाद लीडर लाइन है, एक्सटेंशन लाइंस है, कंस्ट्रक्शन लाइंस है, एंड वो सारी जो लाइंस है उसको ड्रॉ करने के लिए थीन, कंटिन्यूअस थीन लाइन का यूज होता है, राइट. उसके बाद एक आती है कंटिन्यूअस थीन ही लाइन, बट वो एक वेवी लाइंस है, राइट. जो इरेग्युलर शेप होते हैं कोई भी लाइन के, जो बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं, जिसका हमें स्ट्रेट सरफेस नहीं मिलती, कोई इरेग्युलर शेप है, तो उसको हम ड्रॉ करने के लिए वेवी लाइंस का यूज करते हैं. उसके बाद है शॉर्ट डैशेड लाइन, राइट. शॉर्ट डैशेड जो लाइन है, डैशेड लाइन उसको भी बोल सकते हैं, वो हिडन आउटलाइंस एंड एजेस को ड्रॉ करने के लिए दिखाया जाता है. जो हिडन लाइन है, हिडन लाइंस मीन्स जो है बट हमें विजिबली दिख नहीं रही है, कोई पार्ट्स की आउटलाइन जो पार्ट के बैक साइड में रहती है, राइट. तो वो जो बैक साइड पार्ट के रहती है वो हमें विजिबल आईज से नहीं दिख रही, बट देयर इज अ लाइन, वो वहाँ पे है बट हमें दिख नहीं रही है, तो उसको दिखाने के लिए ड्राइंग में हम डैश लाइन का यूज करते हैं, राइट. उसके बाद है लॉन्ग चेन थीन लाइन, राइट. नॉर्मली वो सेंटर लाइंस को ड्रॉ करने के लिए इस लाइन का यूज होता है. अभी तक आपने बहुत सारे सर्कल्स और जो ड्रॉ किए उसके सेंटर्स जो आप डायमेंशन देते हैं उसमें इस लाइन, सेंटर लाइंस का यूज किया होगा. लोकस ऑफ लाइन, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग पार्ट प्लेन्स, राइट. वो सारे जो पार्ट है उसको, उसके जो सेंटर्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सेंटर लाइंस का यूज करते हैं, जिसको लॉन्ग चेन थीन लाइन से दिखाया जाता है, जिसमें नॉर्मली एक वन डैश रहता है, उसके बाद वन डॉट, उसके बाद वापस डैश, वापस डॉट एंड वापस डैश, राइट. उस तरीके की ये लाइन रहती है. उसके बाद आती है लॉन्ग चेन थीन लाइन, जो सेम है, डैश डॉट वही लाइन है, बट उसके जो एंड रहते हैं, बोथ साइड एंड्स जो रहते हैं वो थिक रहते हैं, राइट. ये जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइंस को दिखाने के लिए यूज होता है. ये लाइंस कब यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो सब मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा. अभी के लिए लाइन के जो टाइप्स हैं एंड यूजेस है उसको आपको लिख लेना है, राइट. उसके बाद आती है लास्ट लॉन्ग चेन थिक लाइन. थिक लाइन जो है वो एडिशनल ट्रीटमेंट अगर कोई सरफेस को इंडिकेट करना है उसके लिए इसका यूज होता है, राइट. एंड लास्ट लाइन है जिगजैग लाइन. जो जिगजैग लाइन आप लोगों ने देखी होगी ग्राफ्स में, राइट. अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो जीरो से स्टार्ट, तो जीरो से ही होता है, बट डायरेक्ट नंबर्स जो आपको दिखाने हैं वो समथिंग अराउंड 1000 प्लस है डायरेक्टली, तो जो एक लॉन्ग ब्रेक आ जाता है 0 to 1000, राइट. तो वो लॉन्ग ब्रेक दिखाने के लिए हम जिगजैग लाइन का यूज करते हैं. नॉर्मली आप सब लोगों ने 11th-12th में उसको ग्राफ्स जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तब उस लाइंस का यूज किया होगा, राइट. तो यही नॉर्मली टोटल 8 टाइप्स ऑफ लाइन है, डिफरेंट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है. आई विल गिव यू 5 minutes. You can read, you can type it in your group, you can keep notes so you can easily understand and remember it later when you need to use these lines, okay. अभी के लिए आप सब इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो
आगे जाके कभी भी आपको रिटर्न याद करना हो तो आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, राइट। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर हो, प्लीज़ जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो घर पे अवेलेबल रहेंगे आपके पास, वो साथ में रख के ड्राइंग कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि मैं पीपीटी ज़्यादातर दिखाऊंगा एंड आप उसको देख के समझ पाओगे। उस सबको आपको ड्राइंग करना भी चाहिए। बिना आप ड्राइंग करें आपको वो पार्ट समझ में नहीं आएंगे। देखने के बाद ऐसा लग जाएगा हाँ समझ में आ गया, बट जब बाद में रिमेंबर करने जाएंगे तब आप भूल जाओगे, राइट। तो इट्स बेटर टू राइट एंड नोट इट डाउन, ओके। If anyone have any doubt in this type of lines, then you can ask it. किसी को डाउट है इस टाइप ऑफ लाइन एंड इट्स यूजेस में? ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कितनी ये सारी टाइप्स, उसके जो कैसे दिखती है वो लाइंस एंड उसकी एप्लीकेशंस। प्लीज़ एक टेबल जो है उसको आप अपने ड्राइंग बुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ लाइन कभी भी आपको यूज में आएगी, राइट। ओके, नाउ कंसिडरिंग आप सबने नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। सो नेक्स्ट है डायमेंशनिंग मेथड्स। किस तरीके से हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं, डायमेंशनिंग क्या है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं तो डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनिंग। What is dimensioning? Dimensioning is a process of specifying parts information by using of lines, numbers, symbols and notes, right? जो डायमेंशन है उसमें 4 कंपोनेंट बहुत ही मैटर करते हैं। फर्स्ट है लाइन, सेकंड नंबर्स, थर्ड है सिंबल्स एंड फोर्थ है नोट्स, राइट। ये चारों चीज में क्या आता है, किस तरीके आता है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले याद रख लेना, फर्स्ट इज जो डायमेंशनिंग लाइन है वो कंटिन्यूअस थीन लाइन से ही उसका हमें ड्राइंग करना है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कंटिन्यूअस थीन लाइन। ऑलवेज कभी भी थिक लाइन से ड्राइंग नहीं करना है डायमेंशन लाइन का, राइट। उसके बाद डायमेंशनिंग में सिंबल्स आते हैं। मोस्ट कॉमन सिंबल्स आर रेडियस एंड डायमीटर, राइट। रेडियस को जो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं एंड जो डायमीटर है उसके लिए फाई है, राइट। ये सिंबल्स जो है आपको पहले से ही पता है आप लोगों को, आप लोगों ने 11th-12th में इनका यूज किया है बहुत अच्छे से। फिर भी जो ये सिंबल है और एब्रेविएशन है उसको याद रख लीजिए, राइट। वंस मोर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डायमेंशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग पार्ट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑफ लाइन्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड नोट्स। लेट्स सी वन बाय वन। ओके, डायमेंशनिंग कंपोनेंट्स। डायमेंशनिंग में क्या क्या आता है, राइट। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था लाइंस, तो लाइंस 2 टाइप की आती है। फर्स्ट इज एक्सटेंशन लाइन एंड देन सेकंड इज डायमेंशन लाइन, राइट। देखो एक्सटेंशन लाइंस, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, कोई भी पार्ट की कॉर्नर है उसको मुझे इंडिकेट करना है। टू इंडिकेट अ लोकेशन ऑफ एनी पार्ट यू कैन यूज एक्सटेंशन लाइंस, राइट। एक्सटेंशन लाइंस ऐसे पार्ट की लोकेशन को बाहर निकाल के पार्ट के बाहर देती है। उसके बाद डायमेंशन लाइंस जो है वो इंडिकेट करती है उस जो एक्सटेंशन लाइन को डिनोट करने के लिए। जो डायमेंशन लाइंस है ऑलवेज एरो हेड के साथ आती है,
डायमेंशन लाइंस ऑलवेज कम्स विथ एरो हेड एंड डायमेंशन लाइन इंडिकेट करती है जो एक्सटेंड किया होता है जो हमने डायमेंशन, उसको इंडिकेट करने के लिए हम डायमेंशन लाइंस का यूज करते हैं, राइट। जो ए आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है एक, वो डायमेंशन लाइंस है, राइट। ये भी डायमेंशन लाइन ही है, दिस वन ऑल्सो द डायमेंशन लाइन, दिस इज द एक्सटेंशन लाइन, दिस एरो हेड ऑल्सो द एक्सटेंशन लाइन, राइट। ओके, उसके बाद आता है नंबर्स, मीन्स डायमेंशन नंबर्स। जो डायमेंशन लाइंस के ऊपर जो हम नंबर, कि भाई जो डायमेंशन लाइन हमें दिखाया है उसके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है कि हाँ भाई इसका डिस्टेंस ये है, वो नंबर्स जो है वो डायमेंशन नंबर्स बोला जाता है उसको, राइट। देन इट्स कम टू लेडर लाइंस। लेडर लाइंस जो है वो डिटेल्स, किसी फीचर की डिटेल्स है उसको इंडिकेट करने के लिए लीडर लाइन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लीडर लाइन है, देखो एक्सटेंशन लाइंस जो है उसमें एरो हेड नहीं होता है, एक्सटेंशन लाइन जो हम यूज करते हैं उसमें एरो हेड नहीं रहता है, बट जो लीडर लाइन है वो सिंगल एरो से उसको आया जाता है। ये जो है हमारी वो लीडर लाइन है, सिंगल एरो के साथ वो किसी एक फीचर को जो है उसको इंडिकेट कर रहा है, राइट। और उसके बाद उसका जो डायमेंशन, हाँ बोलो बोलो सर। डायमीटर का सिंबल तो स्मॉल डी होता है ना? डायमीटर का सिंबल स्मॉल डी नहीं होता है, डायमीटर का सिंबल जो है वो फाई रहता है। स्मॉल डी हम यूज करते हैं, उसको डायमीटर का सिंबल नहीं बोला जाता, डायमीटर का सिंबल फाई रहता है, फाई। आप बुक्स में भी देख सकते हो डायमीटर का सिंबल फाई रहता है, उसका स्मॉल डी नहीं रहता है, राइट। हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर का जो सिंबल है वो फाई ही रहेगा एंड रेडियस है वो कैपिटल आर ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कहीं पे अगर रॉन्ग सिखाया है तो मुझे पता नहीं है, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में सब जगह पे डायमीटर को फाई से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, एंड रेडियस को कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। ये हमेशा याद रखना, राइट। अब उसके बाद कहाँ था मैं, लीडर लाइंस, राइट। लीडर लाइंस किसी भी फीचर को इंडिकेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस होल, जो होल है उसको इस एरो से इंडिकेट किया है, तो ये जो एरो लाइन है उसको हम लीडर लाइन बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो फीचर है, जो कर्व है, उसको एरो लाइन से इंडिकेट किया है, राइट। एरो लाइन जो है उसको हम लीडर लाइन बोलते हैं। उसके बाद आता है नोट्स। जो भी लीडर लाइन्स हमने इंडिकेट किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसके डायमेंशन नंबर देने के लिए जो नोट्स का हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डायमीटर 10, रेडियस 16, उसको हम नोट्स बोलते हैं, राइट। ये लोकल नोट्स है और डायमेंशन नंबर से वो अलग रहते हैं। नोट्स में हमेशा कोई ना कोई सिंबल या कुछ रहता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द नोट, राइट। ओके, आई होप डायमेंशनिंग कंपोनेंट्स जो है वो सबको समझ में आ गए हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, देन वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब डायमेंशनिंग आप जब अप्लाई करते हो तब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखने की होती है। मेनली जो एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन एंड डायमेंशन नंबर जो है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दिस इज द एक्सटेंशन लाइन, दिस इज डायमेंशन लाइन एंड दिस इज डायमेंशन नंबर। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन नंबर। एक्सटेंशन लाइन में कभी भी किसी भी एरो का यूज नहीं होता है। डायमेंशन लाइन में हमेशा बोथ एंड पे एरो होता है एंड जो डायमेंशन लाइन के ऊपर जो नंबर दिया होता है वो डायमेंशन नंबर रहता है, राइट। उसके बाद आता है लीडर लाइन एंड नोट्स। लीडर लाइन हमें कम्स विथ अ सिंगल एरो। लीडर लाइंस हमेशा एक एरो के साथ ही आती है और लीडर लाइन के साथ में जो नोट दिया होता है
नंबर दिया होता है उसको हम नोट्स बोलते हैं, राइट। तो ये पांचों कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए कैसे करना है। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, हाँ बोलो। डायमेंशन नंबर डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखा जाता है। हाँ, डायमेंशन नंबर डायमेंशन लाइन के साथ आता है। अब ऊपर लिखा जाता है, नीचे लिखा तो नहीं लगा? नीचे नहीं लिख सकते, डायमेंशन लाइन को कट करके लिख सकते हो। कैसे लिखते हो आएगा आगे। उस डायमेंशन लाइन के नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर या डायमेंशन लाइन के साथ में लिख सकते हो। कैसे मैं आपको समझाऊंगा, राइट। ओके, अभी के लिए ये पांचों आपको क्लियर हो गए कंपोनेंट्स, राइट। डायमेंशनिंग में ये 5 मेन कंपोनेंट्स है, राइट। सबसे पहले आता है एक्सटेंशन लाइंस। एक्सटेंशन लाइंस किस तरीके से देना है। ऑलवेज लीव अ विजिबल गैप। हाँ बोलो बोलो। सर वो जो इसके पहले वाली स्लाइड में नोट्स का सेकंड पॉइंट है ना, वो नहीं समझ में आया। नोट्स का सेकंड पॉइंट, डिटेल ऑफ द लोकल नोट्स डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट फीचर्स। ये डिटेलिंग है, यहाँ पे फाई डायमीटर देना है या रेडियस देना है, वो डिपेंड्स करता है ऑब्जेक्ट के फीचर पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फुल सेंटर होल है तो नोट में क्या दिया है, डायमीटर इंडिकेट किया है। यहाँ पे एक आर्क है तो आर्क में हम डायमीटर नहीं दे सकते, उसको रेडियस डिनोट किया, इंडिकेट किया है, राइट। मीन्स जो नोट है वो डिपेंड करती है आपने कौन सा फीचर सिलेक्ट किया। अगर होल सिलेक्ट किया है देन आपको डायमीटर इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर आपने आर्क सिलेक्ट किया है देन यू हैव टू गिव अ रेडियस टू दिस फीचर, राइट। ओके सर। दिस नोट is indicating that thing. Okay, Yes. Now I was on the extension line. Okay, extension line में always leave a visible gap, right? Means देखो यहाँ पे सब visible gap दिया हुआ है। जो main आपका drawing रहता है उससे extension line हमेशा थोड़ी दूरी बना के रखेगा, right? More minimum of exactly 1 mm gap you can give. You have to always give 1 mm or less for equal to 1 mm visible gap from the main structure or main drawing for extension lines, right. उसके बाद extension line जो है उसकी वो dimension lines के थोड़ा ऊपर जाएगी, right, beyond the dimension line 2-3 mm, minimum of 2 और 3 mm डायमेंशन लाइन से थोड़ा एक्सटेंशन लाइन आगे जाएगी, राइट। फॉर देखो यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन लाइन से थोड़ा ऊपर। ये जो प्रैक्टिस है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खत्म हो रही है वहां से ही डायमेंशन लाइन दिया है, वो प्रैक्टिस रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको मिनिमम 2 और 3 mm एक्सटेंड करना है एक्सटेंशन लाइन को, राइट। सी हियर विजिबल गैप जो है वो नहीं दिया है। यू हैव टू गिव अ विजिबल गैप टू द एक्सटेंशन लाइंस, राइट। सो ये कोई बात है ये आपको ध्यान रखनी है। हमेशा कोई भी फीचर से हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन लाइन को, देन यू हैव टू गिव विजिबल गैप्स। यहाँ पे भी विजिबल गैप नहीं दिया है, यहाँ पे गिवन है, राइट। So these are the good practice of giving extension lines and these are the poor practices for the giving extension lines, right। ये चीजें बहुत मैटर करती है क्योंकि इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसमें हम कभी भी गलती नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, एक्सटेंशन लाइन देने के टाइम आपको कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं करना है। डू नॉट ब्रेक द एक्सटेंशन लाइन, राइट। देखो यहाँ से इस फीचर से आपने एक्सटेंशन लाइन देना स्टार्ट किया है, यू हैव गिवन द एक्सटेंशन लाइन टू दिस फीचर, देन यू डोंट हैव टू ब्रेक द एक्सटेंशन लाइन हियर, यू कैन कंटिन्यू द एक्सटेंशन लाइन। देखो यहाँ पे दिस वन गिव्स द ब्रेक, दिस इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस फॉर गिविंग एक्सटेंशन लाइन्स, राइट। एक्सटेंशन लाइन्स ऑलवेज कंटिन्यूअस लाइन्स, राइट। this center hole को हमने extension दिया है, then it will continue through the main features. If you can give any corner to the extension line, then you have to give some visible gaps there, right.
बट कहीं यहाँ से कहीं से अंदर से स्टार्ट कर रहे हो, देन यू डोंट हैव टू गिव विजिबल गैप हियर, राइट? दिस इज द गुड प्रैक्टिस एंड दिस इज पुअर प्रैक्टिस, राइट? ये हमेशा आपको याद रखना है. देन इट्स कम टू डायमेंशन लाइंस. डायमेंशन लाइंस appropriately स्पेस के साथ गिवन होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ आप जो है उसके साथ उसका एक विजिबल गैप जो है वो हमेशा रहना चाहिए. यहाँ पे एग्जैक्ट 2 क्लोज दे दिया है, आप उसको 2 क्लोज नहीं दे सकते हो, उसको थोड़ा फ्रंट की जो साइज रहती है उसके 2 टाइम आपको उसको बाहर रखना है, राइट? टू फार भी नहीं रखना है. यू डोंट हैव टू गिव टू फार डायमेंशन और टू क्लोज. यू हैव टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस, राइट? मिनिमम, no maximum. You have to give medium distance to the dimension lines always, right? And then comes to arrowhead. If I comes to arrowhead, then arrowhead will be 1 mm in height and 3 mm in length. एरोहेड का भी एक डायमेंशन रूल है. अगर एरोहेड का जो हाइट है वो 1 mm रहता है तो उसकी लेंथ 3 mm होनी चाहिए. अगर एरोहेड की हाइट 2 mm है देन एरोहेड की लेंथ 6 mm होनी चाहिए, राइट? ये जो रेशियो है हमेशा एरोहेड के टाइम पे मेंटेन करना है आपको, राइट? जनरली जो डायमेंशन नंबर जो है वो हम लेटर जो है 2H और HB पेंसिल का यूज करके ही उसको डायमेंशन नंबर देने हैं. डायमेंशन नंबर्स की हाइट जो है 2.5 to 2.3 mm हो सकती है, राइट? उसके बाद जो नंबर्स है उसको मिनिमम यू हैव टू गिव 1 mm अबोव ऑफ द डायमेंशन लाइन, राइट? डायमेंशन लाइन के एग्जैक्टली ऊपर नहीं प्लेस करना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखना है. यू हैव टू जस्ट पुट इट ऑन द एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन, राइट? डायमेंशन लाइन के एग्जैक्टली ऊपर रखना है उसको, उसके बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लिखना है और उसको कट करके लिखना भी नहीं है, राइट? देन देयर इज अनदर वन, डायमेंशन लाइन. जब भी आप डायमेंशन नंबर देते हो उसमें आपको कभी भी पीछे mm लिखना ज़रूरी नहीं है. मिलीमीटर्स का जब भी यूज़ आता है उसको वो नेसेसरी नहीं है कि आप डायमेंशन के पीछे mm लिखें. mm सिंबल डिफ़ॉल्ट सिंबल है. अगर नंबर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा है देन आपको कंसीडर करना है कि वो mm है. अगर mm के अलावा और कोई डायमेंशन है then you can give it like a meter, right? But normally in engineering drawing सारे जो यूनिट है वो डायमेंशन मिलीमीटर्स में ही दिए जाते हैं, राइट? तो you don't have to put a symbol of mm behind the dimension number. Then अगर कोई एंगुलर डायमेंशन आप दे रहे हो एंगुलर, then you have to give symbol of डिग्री. डिग्री सिंबल है और नंबर के पीछे देना ही है. यहाँ पे जैसे नॉर्मली 60 लिख दिया है वैसे नहीं लिखना, राइट? उसके बाद इफ नेसेसरी देन यू कैन गिव मिनट एंड सेकंड सिंबल. अगर डिग्री जो है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आ रही है देन इट मे कम विद द मिनट्स एंड सेकंड्स आल्सो. देन यू हैव टू पुट इट in the way. Minutes means single inverted comma and second means double inverted comma on the behind of the number, right? Next we will see the space. Space situations जो है वो हमेशा याद रखना है. if नंबर लिखने के लिए अगर यहाँ पे आपको exactly space नहीं मिल रही है then you have to extend the line of dimension line and then you have to give it number, right? अगर यहाँ पे अगर स्पेस नहीं है नंबर लिखने के लिए तो डायमेंशन लाइन को एक्सटेंड करके उसके बाद वहाँ पे आप नंबर जो है डायमेंशन नंबर वो दे सकते हो. सॉरी.
उसके बाद इफ कहीं पे नंबर लिखने की इनफ स्पेस है बट एरो देने के लिए स्पेस नहीं है, राइट, तो एरो को हम इस तरीके से दे सकते हैं, आउटसाइड बोथ साइड एरो देके सेंटर में आप नंबर लिख सकते हो। अगर नंबर लिखने की भी वहाँ पे स्पेस नहीं है देन यू कैन गिव द नंबर लाइक दिस, राइट। इस तरीके से आपको बहुत ही कंजस्टेड प्लेसेस में नंबर्स नहीं लिखना है, राइट। इस तरीके के एरो हेड्स भी नहीं बनाने, स्पेस को ध्यान रखते हुए आपको डायमेंशंस देने हैं कोई भी ड्राइंग के, राइट। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया है। यस सर। ओके, देन वी विल कंटिन्यू। डायमेंशन नंबर जो देना है वो उसके लिए दो मेथड है, एक अलाइन मेथड एंड एक यूनिडायरेक्शनल मेथड। आप किसी का क्वेश्चन था कि डायमेंशन हमेशा लाइंस के ऊपर ही देना है, वो कहीं और नहीं दे सकते। दिस क्वेश्चन टू दैट क्वेश्चन माय आंसर इज हियर, राइट। डायमेंशन नंबर हम दो तरीके से लिख सकते हैं, अलाइन मेथड एंड यूनिडायरेक्शनल मेथड। इन अलाइन मेथड दो टाइप से आप डायमेंशनिंग दे सकते हो, एक फ्रॉम बॉटम एंड एक राइट साइड से। बॉटम साइड से लिख सकते हो एंड राइट साइड से जैसे दिखे वैसे लिख सकते हो अलाइन मेथड में। एंड यूनिडायरेक्शनल मेथड में ओनली बॉटम, राइट। कोई भी डायमेंशन फिगर्स है वो ओनली बॉटम से ही आपको विजिबल रहेंगे स्ट्रेट, राइट। ये दो मेथड को हम अगर फर्दरली डिस्क्राइब करना चाहे तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अलाइन मेथड एंड यूनिडायरेक्शनल मेथड का। इन अलाइन मेथड एरो जो डायमेंशन एरो लाइंस है उसके साथ में डायमेंशन लाइन के तरीके से उसको नंबरिंग देना है, राइट। जहाँ पे एरो लाइंस है डायमेंशन लाइंस उसके हिसाब से डायमेंशन लाइन के ऊपर नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरीके से करना है कि बॉटम साइड एंड राइट साइड से वो एग्जैक्टली सारे डायमेंशन आपको दिखने चाहिए, राइट। दिस इज द अलाइन मेथड। यूनिडायरेक्शनल मेथड की बात करता हूँ तो यूनिडायरेक्शनल मेथड में जो भी डायमेंशन नंबर्स आप दे रहे हो वो ओनली स्ट्रिक्टली विजिबल फ्रॉम बॉटम साइड, राइट। बॉटम साइड में से ही सारे डायमेंशन आपको दिखने चाहिए। देखो अब उसके लिए यू हैव टू कट द डायमेंशन लाइन फ्रॉम द सेंटर एंड यू हैव टू गिव द नंबर्स, राइट। तो ये दो डायमेंशनिंग मेथड्स है मेनली, अलाइन डायमेंशन मेथड एंड यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन मेथड, राइट। इन दिस our course of engineering drawing we will only use aligned dimension methods, right। so सबके जो मेथड है डायमेंशनिंग के एक साथ सेम रहे। आप सबको डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर डायमेंशनिंग नंबर का यूज करना है, डायमेंशन लाइन को कट करके नहीं लिखना है या डायमेंशन लाइन के नीचे नहीं लिखना है। डू नॉट राइट बिलो ऑफ द डायमेंशन लाइन और आफ्टर कटिंग the dimension line. We will use this method for our subject, right। so सब common रहेगा। अगर कोई आधे लोग अलाइन मेथड यूज करेंगे, आधे लोग यूनिडायरेक्शनल मेथड यूज करेंगे, देन जो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा चेकिंग में, राइट। तो अभी से ही फिक्स कर लेते हैं, हम सब अलाइन मेथड का ही यूज करेंगे डायमेंशन के टाइम पे, राइट। एक और सेम एग्जांपल अलाइन मेथड एंड यूनिडायरेक्शनल मेथड। ये जो कर्व है उसको डिग्री इंडिकेट करने के लिए अलाइन मेथड में कैसे उसको डिनोट करते हैं एंड यूनिडायरेक्शनल मेथड में उसको कैसे डिनोट करते हैं वो आपको एंगुलर डायमेंशंस जो है उसके लिए दिखाया गया है, राइट। हम सिर्फ अलाइन मेथड का यूज करेंगे। दोनों मेथड राइट है, both method are correct but we will use aligned method for our subject, right। हाँ, कभी भी डायमेंशन लाइन के नीचे नंबर नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है 45,
You have to give only on the top of dimension line, right? डायमेंशन लाइन के नीचे कभी भी नंबर नहीं आता, उसके ऊपर ही रहेगा, राइट? आप आई होप ये दोनों मेथड आप सबको समझ में आ गई होगी। यस सर। ओके सर हाँ बोलो। ओके नेक्स्ट सॉरी वी कम्स टू लोकल नोट्स। लोकल नोट्स हमेशा पहले से ही बोला है, कोई भी लेटर है उसको हम 2H या HB पेंसिल से ही उसको लिखना है, या जो हाइट रहती है लेटर की वो 2.5 to 3 mm की हाइट रहनी चाहिए। नॉर्मली जो आप नटराज की या कोई पेंसिल यूज करते हैं घर पे वो HB पेंसिल्स रहती है, राइट? उसके बाद जो भी लेटर लिखते हैं लोकल नोट्स वो हमेशा हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए। ऑलवेज लेटर नोट्स जो होती है वो हॉरिजॉन्टली लिखना है आप, राइट? यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए, गुड प्रैक्टिस एंड पुअर प्रैक्टिस की। नॉर्मली जो लोकल नोट्स देनी है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है मेन उससे 10 mm हाइट्स पे देना है, नॉट टू फार नॉट टू क्लोज, राइट? You have to keep around 10 mm distance for local notes, right? लीडर लाइंस जो है वो हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट होती है। सेंटर से जो लाइन आती है वहाँ उसी सेम लाइन से लीडर लाइंस स्टार्ट होती है फीचर्स को दिखाने के लिए। यहाँ इतना दूर भी आपको नहीं लिखना है, वर्टिकली भी नहीं लिखना है, और इस तरीके से जो फीचर रहते हैं उसके डायमेंशन इस तरीके से नहीं देने हैं, उसको लीडर लाइन एंड लोकल नोट्स का यूज करते हुए ही उसको आपको इंडिकेट करना है, राइट? ये थोड़ी कॉमन चीज है वो आपको याद रखनी है। देन इट्स कम टू लेंथ। कोई भी लेंथ है, कोई भी एज की लेंथ देनी है तो हम डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड डायमेंशन नंबर का ही यूज़ करते हैं, राइट? उसको यूज़ करने के लिए पहले से ही बोला है, एक्सटेंशन लाइन हमेशा विजिबल गैप के साथ आती है। कोई भी स्ट्रक्चर के साथ अगर हम कंटिन्यू करते हैं देन वो कंटिन्यूस ही रखना है, कभी उसको ब्रेक नहीं करना है। एंड हमेशा डायमेंशन जो है एरो जो डायमेंशन लाइन के ऊपर ही डायमेंशन नंबर देना है। अगर डायमेंशन लाइन हॉरिजॉन्टल है then dimension number will be horizontal. If dimension line is vertical then dimension number is vertically, but always on the top of dimension line, right? Then next it comes to angle. सर्कुलर डायमेंशन जो है वो डायमेंशन देने के लिए हमेशा ये जो सर्कुलर डायमेंशन का जो वर्टेक्स रहता है, एंगल का वर्टेक्स पॉइंट, दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट, उसको सेंटर में रख के ही जो एंगुलर जो हमारा डायमेंशन लाइन है वो हम बनाएंगे, राइट? इस तरीके से इस सेंटर कहीं यहाँ रख के डायमेंशन लाइन नहीं बनाएंगे। जो एंगल का वर्टेक्स रहता है उसी को सेंटर पॉइंट बना के हम डायमेंशन लाइंस खींचेंगे, राइट? थ्रू कंपास। ओके, एक और है रेडियस जो हम दिखाना चाहते हैं वो लीडर लाइन एंड लोकल नोट से ही दिखाएंगे। एंड जो लोकेशन है वो हमेशा उसका सेंटर ही रहेगा। कोई भी रेडियस जो दिखानी है वो हम लीडर लाइन एंड लोकल नोट्स का यूज करेंगे। लीडर लाइन मीन्स सिंगल एरो वाली लाइन एंड उसके ऊपर लोकल नोट्स जो भी है आर करके जो भी उसका डायमेंशन रहता है, राइट? हमेशा जो भी लीडर लाइन है नॉर्मली 30 to 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंगल पे रहता है, इंक्लाइन रहती है लीडर लाइंस हमेशा 60 to 30 डिग्री के बीच में। 30 दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, उसके बीच में ही कोई भी इंक्लाइंड एंगल पे हमारी जो लीडर लाइन है वो रहेगी, राइट? उसके यहाँ से नीचे से या वर्टिकली लीडर लाइंस नहीं रहती है। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए,
आपको अगर आपको यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है देन यू कैन गिव लाइक दिस, राइट। अगर आपको सफिशिएंट स्पेस नहीं है देन यू हैव टू जो लीडर लाइन है उसको अंदर रख के एक्सटेंशन लाइन से खींच के जो नोट है लोकल नोट उसको फीचर के बाहर लिखना है। बट ये हमेशा याद रखना है जो भी लीडर लाइन है एरो हेड वाली लीडर लाइन दैट ऑलवेज कम्स इन द कॉनकेव साइड ऑफ द आर्क। ये जो कोई आर्क है आपको 12th में आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के आर्क रहते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आपने शायद मिरर के बारे में ये पढ़ा होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिजिक्स में आता होगा आपको, राइट। सो कॉनकेव साइड ऑफ द आर्क हमेशा लीडर लाइन रहेगी। देखो ये अगर आर्क है उसकी कॉनकेव साइड मीन्स इनसाइड, इंटरनल साइड ऑफ द आर्क, वहाँ पे ही आपकी लीडर लाइन्स एरो के साथ रहेगी। अगर कॉनकेव साइड अंदर है तो एरो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके एक्सटेंशन लाइन बाहर खींच लेना है। एंड अगर कॉनकेव साइड बाहर ही है देन नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू खींच के उसको रख सकते हैं, राइट। अगर जो कोई है ऐसा कि कॉनकेव साइड बहुत ही कम स्पेस है, कुछ भी लिखने की जगह नहीं है, इनसफिशिएंट स्पेस है कॉनकेव साइड, देन एंड देन ओनली एरो हेड एंड जो लेडर लाइन है वो कॉन्वेक्स साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सफिशिएंट स्पेस है तो अंदर ही रखिए, अगर नंबर के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं है ओनली एरो हेड के लिए ही है तो एरो हेड रखिए। अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही छोटा सा आर्क है, देन एंड देन ओनली you can comes with the convex side of the arc, right? So सबसे पहले ट्राई यही कीजिए फर्स्ट वाला, अगर वो नहीं हो पा रहा है देन सेकंड वाला, और वो भी अगर नहीं है बहुत ही छोटा आर्क है देन एंड देन ओनली यू कैन कम विद द थर्ड ऑप्शन, राइट। अभी यहाँ पे बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो आर्क बनाने में स्टूडेंट्स करते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर से 60 डिग्री के ऊपर चला गया है नॉर्मल आर्क, राइट। उसके बाद सेंटर से स्टार्ट नहीं किया है सेकंड वन में, उस यहाँ पे 90 डिग्री पे आर्क दे दिया है, यहाँ पे आर्क दिया है बट यहाँ से एक्सटेंड नहीं किया है। उसके बाद एक्सटेंड 10 mm एक्सटेंड करने के बाद लोकल नोट देना है, डायरेक्टली यहाँ पे लोकल नोट दे दिया है 0 mm डिस्टेंस पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दे दिया है, यहाँ पे दिया है बट लोकल नोट जो है उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है। लोकल नोट मैंने पहले ही बोला है हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है। यहाँ पे डायमेंशन दिया तो है किसी का बट कहाँ से वो आ रहा है वो पता नहीं, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है, कोई कटिंग लाइन ही नहीं है, राइट। तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं आर्क को इंडिकेट करने में, राइट। एक और है, अगर कोई ऐसा आर्क है जो आपकी ड्राइंग शीट है उससे बाहर उसका सेंटर पड़ रहा है, सेंटर ऑफ द आर्क इज comes in outside of the drawing sheet, right? Then you can use the zigzag line. zigzag line का जो मिनिमम लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेक है उसको दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरी भी मेथड है, सेम सेंटर वाली जो लाइन है उसको फॉलो करते हुए यहाँ से हम खींच के लोकल नोट दे सकते हैं, राइट। अब बात आती है कर्व की। कर्व जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क्स है, 2 या 3 आर्क्स को हम कंबाइन करते हैं देन कोई एक कर्व बनता है, राइट। तो कर्व में हमेशा 2 या उससे ज़्यादा रेडियस आपको गिवन होती है, राइट। तो अगर कोई कर्व है उसको सिंगल रेडियस कभी भी नहीं होता है, उसको मिनिमम 2 रेडियस होता है, राइट। तो कर्व को इंडिकेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। के बाद आता है फिलेट्स एंड राउंड्स। अगर फिलेट्स सारे कॉर्नर पे सेम है तो सब कॉर्नर पे आपको डायमेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे एक नोट लिख दीजिए, ऑल द फिलेट्स एंड राउंड आर दिस रेडियस। अगर रेडियस सबकी कॉमन है देन Dear students,
very sorry for inconvenience. I am facing internet issue here, so we will continue our lecture in the next session of Hello, sir. engineering drawing. Very sorry. Thank you.